ہمنا اسلامک کڈ ٹی وی۔ قصے انبیاء۔ آج سے ہم ایک ایسی کہانی کی شروعات کریں گے جس میں ایک بادشاہ نے اپنے آپ کو خدا کہا، لوگوں پر ظلم کیا اور کہا کہ میں ہی سب کا مالک ہوں، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کا جلوہ دکھایا اور اس کے غرور سے بھرے تخت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ کہانی ہے فرعون کے گھمنڈ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر اٹوٹ یقین کی۔ آج سے بہت سمے پہلے کی بات ہے، مصر کا بادشاہ تھا فرعون۔ وہ بہت ظالم تھا، لوگوں سے زبردستی کام کرواتا اور خود کو خدا کہتا تھا۔ ایک رات فرعون اپنے شاندار محل میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا، لیکن اس رات اسے ایک عجیب اور ڈراونا خواب آیا۔ اس نے دیکھا آسمان سے ایک آگ اتر رہی ہے اور وہ آگ مصر کے ہر گھر کو جلا رہی ہے، مگر ایک گھر ایسا تھا جو اس آگ سے سرکشت تھا۔ فرعون نیند سے جاگ گیا، پسینے میں لت پت، ڈر سے کانپتا ہوا۔ اس نے فوراً اپنے دربار میں بلایا جادوگروں، عالموں اور اپنے وزیروں کو۔ کانپتی آواز میں اس نے کہا، میں نے ایک ڈراونا خواب دیکھا ہے، آسمان سے آگ اتر رہی تھی اور سب کچھ راکھ بن گیا۔ ایک بوڑھا عالم آگے بڑھا اور بولا، اے بادشاہ، یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ اشارہ ہے، جلد ہی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا انت کرے گا۔ فرعون غصے سے چیخ اٹھا، کیا وہ بچہ میری حکومت ختم کرے گا؟ اس نے آدیش دیا، آج کے بعد مصر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا جائے۔ پورا مصر دہشت میں آ گیا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی رحمت اب آنے والی ہے۔ مصر کی گلیوں میں خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے نیچے ایک ڈر چھپا تھا۔ ہر گھر میں عورتیں اپنے بچوں کو چھپا رہی تھیں، کیونکہ فرعون کا حکم تھا، آج کی رات جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ سپاہی گلیوں میں مشالیں لیے گھوم رہے تھے، ان کی تلواریں چمک رہی تھیں اور ان کی چیخیں ہوا کو چیرتی ہوئی نکل رہی تھیں۔ اسی رات ایک چھوٹے سے گھر میں ایک ماں اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر دعا، اور پھر ایک پیارے سے بچے کی رونے کی آواز گونج اٹھی۔ ماں کانپ اٹھی، اس نے چاروں طرف دیکھا، ڈر اس قدر تھا کہ اس کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور پھسپھسائی، اے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے اس بچے کو بچا لے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سکون تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے دل میں الہام ڈالا۔ اس نے اب اپنے بچے کو ایک چھوٹی ٹوکری میں رکھا اور اسے دریا میں چھوڑ دیا۔ ماں کی آنکھوں میں سیلاب تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تیرے حکم پر میں سب قربان کرتی ہوں۔ اس نے اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھا، نرم کپڑے، تھوڑا سا دودھ اور پیار سے لپیٹا ہوا۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما اور کانپتی آواز میں کہا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ دروازے سے باہر نکلی۔ رات کا سناٹا اور ہوا میں ڈر، لیکن اس ماں کے دل میں صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ مصر آسمان میں چاند چمک رہا تھا۔ موسیٰ کی ماں نے کانپتے ہوئے اپنے بچے کی ٹوکری ندی میں رکھی۔ ٹوکری دھیرے دھیرے پانی پر بہنے لگی، ہر لہر جیسے کہہ رہی تھی، مت ڈر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ دور ایک چھوٹی لڑکی ندی کے کنارے کنارے چل رہی تھی، وہ تھی موسیٰ کی بہن۔ وہ چپ چاپ اپنے بھائی کی ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ وہ سوچ رہی تھی، ہے اللہ، اس ٹوکری کو صحیح جگہ پہنچا دے۔ اب شانت تھا۔ ٹوکری دھیرے دھیرے بہتی ہوئی فرعون کے شاندار محل کے باغ کے پاس پہنچ گئی۔ محل کے پاس حضرت آسیہ کی کچھ باندھیوں نے ندی میں ایک ٹوکری بہتی ہوئی دیکھی۔ اس ٹوکری پر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک باندھی پانی میں اتر کر وہ ٹوکری لے آئی۔ جب اس نے ٹوکری کھولی تو دیکھا، ارے یہ تو ایک بچہ ہے۔ ان باندھیوں میں سے ایک دوڑ کر حضرت آسیہ کے پاس گئی اور سارا منظر سنایا۔ حضرت آسیہ نے حیران ہو کر کہا،
उसे जल्दी यहां लेकर आओ। सभी ने ध्यान से देखा, एक छोटी सी टोकरी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। हजरत आसिया ने तुरंत कहा, उसे बाहर निकालो, जल्दी। हजरत आसिया ने धीरे से उसका ढक्कन खोला और अंदर एक मासूम बच्चा सो रहा था। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था, पूरा महल जैसे रोशनी से भर गया। हजरत आसिया की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह बच्चा कितना प्यारा है, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। उसी वक्त अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में उस बच्चे के लिए मोहब्बत भर दी। उन्होंने टोकरी को अपने सीने से लगाया और बोली, ये मेरा बेटा है, इसे मैं पालूंगी। और भी गहरी काली हो चुकी थी। हजरत आसिया बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे अल्लाह की रहमत उस कमरे में उतर आई हो। लेकिन एक सिपाही चुपके से यह पूरा मंजर देख रहा था। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर वो धीरे धीरे पलटकर फिरौन के पास गया। फिरौन अपने सुनहरे तख्त पर बैठा था। महल की दीवारें उसकी ताकत और घमंड की कहानी कह रही थी। जैसे ही सिपाही ने कहा, मालिक, आपकी बीवी को एक बच्चा मिला है, फिरौन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो गुस्से में खड़ा हुआ और जोर से बोला, कौन है वो बच्चा? क्या मैंने नहीं कहा था कि आज की रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर दो? उसे मेरे सामने लाओ, अभी के अभी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सिपाही डरते हुए झुक गए। किसी में हिम्मत नहीं थी उसके सामने देखने या आंखें मिलाने की। और इसी बीच हजरत आसिया बच्चे को लेकर फिरौन के दरबार में आ गईं। हजरत आसिया ने उस बच्चे को सीने से और मजबूती से गले लगा लिया। उनके होंठों से बस इतना निकला, हे अल्लाह, तू ही इस मासूम की हिफाजत करने वाला है। और फिर उन्होंने बच्चे को अपने आंचल से ढक लिया ताकि कोई उस बच्चे की मासूमियत को देख भी न सके। सन्नाटा छा गया। हजरत आसिया ने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया। फिरौन की नजर में गुस्से की आग भड़क उठी। वो चीखा, इस बच्चे को मारना ही होगा। हजरत आसिया ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसे कत्ल करने नहीं दूंगी। फिरौन ने गरजते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मेरी सल्तनत खत्म हो जाए? हजरत आसिया ने आराम से जवाब दिया, यह बच्चा हमारी औलाद नहीं है, लेकिन अगर हम इसे पालेंगे तो यह हमारे साथ रहेगा। फिर यह हमारे साथ बुरा कैसे कर सकता है? फिरौन कुछ पल सोच में डूब गया। आखिर वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक तरफ गर्म कोयला रखा जाएगा, दूसरी तरफ एक छुरी। अगर बच्चे ने छुरी उठाई तो मैं उसे मार दूंगा, और यदि उसने कोयला छुआ तो वह बच जाएगा। क्या तुम इस शर्त को मानती हो हजरत? आसिया की आंखों में हिम्मत और ईमान झलक रहे थे। वो चुपचाप सिर हिलाकर तैयार हो गई, लेकिन उनका दिल बच्चे की हिफाजत की दुआ में मशगूल हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत आसिया ने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया। फिरौन की नजर में गुस्से की आग भड़क उठी। वो चीखा, इस बच्चे को मारना ही होगा। मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे रेंगते हुए छुरी की तरफ बढ़ने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर नजर उस छोटे से बच्चे पर टिकी थी। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घबरा कर कहा, हे अल्लाह, मेरी मदद कर। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर हल्का सा धक्का मारा, जिससे उनका हाथ कोयले की तरफ चला गया। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। दरबार में सब कुछ अब बदल चुका था। हजरत आसिया खुश थी, लेकिन अचानक हजरत मूसा जोर जोर से रोने लगे। महल की सब दाइयां और बांधियां बुला ली गईं, मगर हजरत मूसा ने किसी का दूध कबूल नहीं किया। भीड़ में दूर खड़ी एक छोटी लड़की, वही हजरत मूसा की बहन, ये सारा मंजर चुपचाप देख रही थी। वो सोच रही थी, क्यों ये किसी का दूध नहीं पी रहे? हजरत आसिया परेशान हो गई। उन्होंने कहा,
ये क्या हो रहा है? ये बच्चा किसी का दूध क्यों नहीं पी रहा? तभी उसी भीड़ में से वो लड़की आगे बढ़ी और बोली, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा कबूल कर लेता है। फिरौन ने कहा, कौन है वो औरत? लड़की ने जवाब दिया, वो मेरी मां है। फिरौन ने कहा, ठीक है, उसे बुला लाओ। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा की मां को दरबार में लाया गया। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया, बच्चा तुरंत शांत हो गया। मां की गोद में सुकून था, रहमत थी और अल्लाह की तदबीर थी। दरबार में सब हैरान थे। हजरत आसिया ने कहा, ये कैसे हुआ? मैंने तो कई दाइयां बुलाई, लेकिन इस बच्चे ने किसी का दूध नहीं पिया। इसने तुम्हारा ही दूध क्यों कबूल किया? हजरत मूसा की मां ने मुस्कुराकर कहा, शायद मेरा दूध गाढ़ा और मीठा है, जो बच्चों को पसंद आता है। फिरौन कुछ सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, आज से तुम इस बच्चे की दाई बनोगी। तुम यही रहोगी और इस बच्चे की देखभाल करोगी। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने मां और बेटे को फिर से मिला दिया, वो भी उसी दरबार में जहां मौत का हुक्म सुनाया गया था। जब अल्लाह रहमत करता है तो दुश्मन का घर भी रहमत का ठिकाना बन जाता है। दरबार में सब कुछ अब बदवक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वो बहुत ताकतवर, खूबसूरत और नूरानी इंसान थे। फिरौन के महल में रहते हुए भी उनके दिल में नरमी और इंसाफ भरा था। फिरौन के लोग बनी इजराइल पर बहुत जुल्म करते थे। उन्हें मजबूर किया जाता, पीटा जाता और अपमानित किया जाता था। लेकिन ये सब देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ होती थी। उन्हें ये नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन वो शहर की गलियों में घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग औरत को देखा। वो उनकी असली मां थी। मां ने उन्हें पहचान लिया, पास जाकर गले लग गई और रोने लगी। रोते हुए कहा, बेटा, तू फिरौन का नहीं, तू बनी इजराइल से है। तुझे तेरे बचपन में अल्लाह ने मेरे सीने से निकालकर नदी के हवाले किया था और फिर तू फिरौन के महल में पल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ कि वो बनी इजराइल के हैं, वो लोग जिन पर फिरौन जुल्म करता था। कुछ दिनों बाद जब वो शहर में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक फिरौनी था और दूसरा बनी इजराइली। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि फिरौनी बनी इजराइली पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस मजलूम बनी इजराइली पर तरस आया। वो आगे बढ़े और झगड़ा रोकने की कोशिश की। उन्होंने गुस्से में अपना हाथ उठाया और फिरौनी के गाल पर रख दिया। वो एक नबी का हाथ था कि तो वो भला कैसे उठता? वो मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। वो दौड़े और भागकर एक कमरे में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पछताए। उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा की और माफी मांगी। अगले दिन वही बनी इजराइली फिर किसी झगड़े में उलझ गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, वो आदमी फिर बोला, मुझे मदद करो मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल भी तू झगड़ रहा था और आज भी? इतना कहकर उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। बात न समझ आने पर उन्होंने इजराइली पर ही हाथ उठाने की कोशिश की। इजराइली ने कहा, जैसे तूने कल एक फिरौनी को मारा था, वैसे ही क्या आज मुझे मारेगा? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में हाथ उठाने लगे तो इजराइली डर के मारे भाग गया। वो सीधा फिरौन के पास पहुंचा और बोला, कल जिस आदमी को मारा गया था वो हजरत मूसा ने मारा था। जब ये बात फिरौन को पता चली तो उसने हुक्म दिया कि मूसा को पकड़ लो। मगर किसी नेक आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, मूसा, फिरौन के सिपाही तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, यहां से निकल जाओ। हजरत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा किया और मिस्र छोड़कर मदियन की ओर चल पड़े और दिल में अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा। वो जला रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
कई दिनों से चल रहे थे, ना उनके पास खाना था ना पानी। थके हुए वो एक पत्थर पर बैठे आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान सब कुछ खो देता है तो वो अल्लाह को पा लेता है। रेगिस्तान की गर्मी अब कुछ कम हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन शहर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कुआं है जहां बहुत से लोग और चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन एक कोने में 2 शर्मीली लड़कियां अपने बकरियों के साथ खड़ी थी। वो बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और नरमी से पूछा, तुम लोग यहां क्यों खड़ी हो? अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? लड़कियों ने झुककर कहा, हम तब तक इंतजार करती हैं जब तक ये लोग चले न जाएं। हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हम ही बाहर आती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से रस्सी ली और अकेले ही जाकर पानी बाहर निकाला, फिर जानवरों को पानी पिलाया। लड़कियां मुस्कुराईं, शुक्रिया कहा और घर लौट गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनका दिल सुकून से भर गया, मगर शरीर बहुत थका हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैं बहुत थका हूं। तू जो भी भलाई मुझे दे मैं उसके लिए तैयार हूं। धीरे धीरे हवा चलने लगी। सूरज की किरणें पेड़ की टहनियों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ने लगी। वो सुकून और तसल्ली का पल था जब एक मुसाफिर को अपने रब की रहमत महसूस होती है। शाम ढल चुकी थी। दोनों लड़कियां जब घर पहुंची तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनके चेहरे देखकर समझ गए कि आज कुछ खास हुआ है। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटियों, आज तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? बड़ी बेटी ने कहा, अब्बा जान, आज हमें एक नेक और मजबूत शख्स मिला। उसने हमारी मदद की और हमारे जानवरों को पानी पिलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, जाओ उस नेक इंसान को बुला लाओ ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं। लड़कियां फिर से उस जगह लौटी जहां मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। वो बहुत हिचकिचा रही थी, मगर एक बेटी आगे बढ़ी और बोली, हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं। वो आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़े संभाले और धीरे धीरे दोनों लड़कियों के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने निगाहें झुका ली और सिर झुकाकर फरमाया, आप लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा ताकि मेरी निगाह कहीं गलती से भी आप पर ना पड़े। जब वो घर पहुंचे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। घर के अंदर सुकून और नूर का माहौल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो फिरौन के जुल्म से भागे और कैसे अल्लाह ने उन्हें इस शहर तक पहुंचाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में रहमत झलक रही थी। उन्होंने कहा, डरो मत बेटा, तुम अब महफूज हो। यहां कोई फिरौन का खौफ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने राहत की सांस ली और अपने रब का शुक्र अदा किया। उनके दिल में एक नया सुकून उतर आया, क्योंकि अब उनका सफर रहमत की तरफ बढ़ रहा था। कई दिन बीत गए। मूसा अलैहिस्सलाम अब मदयन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर रह रहे थे। वो मेहनत से काम करते, जानवरों को चराते और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, तुम एक नेक और अमानतदार आदमी हो। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया और कहा, अगर आप मुझसे राजी हैं तो मैं खुशी खुशी यह रिश्ता कबूल करता हूं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मूसा, बताओ तुम मेहर में क्या दोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर अदब से जवाब दिया, आप जो कहें मैं वही कबूल करूंगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने
रहमत भरी नजर से देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मेहर के बदले तुम्हें 8 साल मेरे घर काम करना होगा। हमारी बकरियों की देखभाल करनी होगी और घर का ध्यान रखना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने नम्रता से कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं, मैं यह काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया। वो वहां रहने लगे और अल्लाह की रहमत उनका हर दिन सुकून और बरकत से भर गया। इस तरह एक साधारण मुसाफिर जिसने कभी महलों की जिंदगी देखी थी, अब एक सादा जिंदगी जीने लगा। 8 साल पूरे हो गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल इतना सच्चा था कि उन्होंने 2 साल और वहीं रहकर काम किया। उनके दिल में सुकून था और हर रोज वो अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसे अल्लाह अपना बना ले उसके हर कदम में बरकत होती है। हर सफर का एक मकसद होता है और हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है। अगली कहानी में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो पल जब अल्लाह ने उनसे कलाम किया।